Now you see, we have done cash book for almost 6-7 days. So while doing cash book, what vouchers we have used? That is the receipt voucher and payment voucher and contra entry, right? Receipt voucher is whenever you get cash. Receipt voucher is whenever you get cash. Then payment voucher is whenever you pay cash, and then you have a contra entry. So contra entry is whenever you deposit a cash into the bank or whenever you withdraw cash from the bank is the contra entry. So while doing cash book, we have seen cash receipts, cash payment, and contra entry. In contra entry, you will have only cash account and bank account. Any doubt in the cash book so far? Parth? Parth? Can you hear me? Put in the chat box. But turn your audio on. हाँ तो गीता एंड भंडार, गीता एंड भूपेंद्र, कैश बुक को कुछ प्रॉब्लम है तुम लोग को? नहीं? हाँ, कैश बुक क्लियर है? जो भी मैच नहीं हो रहा है वो अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग महेश्वरी मैडम को दिखाओगे और मैच करोगे। तुम दोनों का मैच नहीं हो रहा है तो तुम लोग को देखना है वाउचर एंट्री कौन सा अमाउंट गलत है, दोनों का तो सेम होना चाहिए। तो उसका और उसका तेरे में डिफरेंस है ना, दोनों में तो डिफरेंस की तरह वो तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो कौन सही है कौन गलत है वो देखना पड़ेगा, आज क्लास खत्म होने के बाद वो देखना है। यस पार्थ, पुट योर ऑडियो ऑन। You have net. Say something. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, बोलो. Do you have proper net? No, the connection is being interrupted. Weak net is weak. Yeah. Okay. So what we have seen is the cash book, and in cash book we have seen receipt voucher, payment voucher, and contract. Receipt is when we get the cash, payment is when we pay the cash, and contra entry is when we deposit the cash or when we withdraw the cash from the bank. Okay? So the way how we deal with the cash book, the same way we have to deal with the bank book. In the bank book, in the bank book, we'll be having check received, that is bank receipts. Then check given will be bank payment, and contra entry is same as the cash book. Is it clear this much? So cash book and bank book is same. Only in cash book you deal with the currency, and in the bank book you deal with the check. That's all. So is it clear now the bank book? So now I am putting my presentation to my PC. I am putting it to the PC, and this is our 15th day, and I am teaching you bank book in more detail. Okay, so let's go to our exercise. So this is the exercise we have solved again that day before yesterday. Rahul, we have made the payment. So have you done all these entries? All these entries have you done practically, Parth? Yes. Yes. So any doubt you had? I had a doubt Huh? regarding drawing goods Regarding drawing, it withdrawn. is which entry? 7th April 2008. 7th April. Which entry you Exercise said? 9. 1, 2, 3, Exercise 4, huh? 9. Exercise 9. So what is this? This is exercise number 10. Okay, I'll open exercise number 9. So let's go to exercise number 9.
So in exercise number 9, what is the time? What is the date? What is the date you have? 7th April, na? 7th April. So this I Yes. already Yes. explained. Okay, Yeah, still but you have doubt. Okay, still you yeah. have doubt. Let's see. See, draw from business cash of rupees 3,000 means he has taken a cash. So you are maintaining the accounts of the business. So you have to always think from business point of view. So it is draw business from cash of rupees. Draw from business cash of rupees 3,000 means business has given payment. So payment to whom? To drawing. So it is payment, the voucher is payment and debit is drawing and credit is cash. Why cash is credited? Because cash is asset, asset has got debit balance, cash decreases, so cash we have given credit, payment है, so cash को always credit आएगा and drawing को debit आएगा. And then the next one is goods of rupees 4,000 has been also withdrawn for personal use. So अभी ये क्या आएगा? So this is again the JV. ये JV है क्योंकि यहाँ पे कैश है ही नहीं. गुड्स वो डायरेक्टली उठा के लेके गया तो इसमें कैश नहीं है या चेक नहीं है तो ये JV आएगा जर्नल वाउचर. नाउ डेबिट किसको देंगे? सेम ड्राइंग को देंगे. फिर क्रेडिट किसको देंगे? गुड्स विथड्रॉन. ये लेजर तुमको खोलना पड़ेगा. मैंने ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ये किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इट विल कम इट एज अ डायरेक्ट इनकम. गुड्स विथड्रॉन फॉर Okay. पर्सनल यूज. अगर हम सेल करते थे वो किधर आता था? वो सेल में आता था और हमको डेबिट में कैश आता था. लेकिन ये सेल नहीं है, ये जेवी है. लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में सेल में भी हमारा माल जाता है. वैसे इधर भी अपना माल ही गया तो ड्राइंग को डेबिट एंड गुड्स को क्रेडिट. यहाँ पे हम लोग सेल करते थे तो सेल्स को क्रेडिट आता था एंड डेबिट को कैश आता था. लेकिन अभी ये सेल्स नहीं है, ये जेवी है. क्लियर ये है? Yes. Yes. Now anything else the doubt you have in this No. problem, Nikhil wala problem? Any doubt? No, everything's No, clear. it's all clear. Have you got Yes. this much balance? 1,76,700. I got 1,81,700. 1 lakh कितना आया? 81,700. 1,86,000. तेरा कितना आया? ओके. अभी किसी का भी मैच नहीं हो रहा है फिलहाल यहाँ पे. अभी हम लोग क्या करेंगे? पहले गीता और संतोष दोनों इधर है ना तो दोनों का मैच करेंगे. फिर किसका क्या मिस्टेक है निकालेंगे. फिर तेरे साथ मैच करेंगे. ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ डाउट नहीं है. राइट? हेलो पार्थ. नहीं है clear. Yes. Now we'll go to the next exercise. Exercise number 10. Exercise number 10 was related to the bank. Create the voucher entry तुम लोगों ने कर दिया है? कितना हाँ. संतोष? क्यों नहीं किया? क्या? कल बैठ के क्यों नहीं किया? लेकिन मैं एक दिन जब भी क्लास को गैप देती हूँ तो उससे तुम लोग का काम होना ही है. उसके बाद भी मैंने और 2 असाइनमेंट देके रखे हैं. और हैव यू फिनिश्ड दोस? 9 and 10, yeah. नहीं 9 and 10 ने आने शिवाय भी व्हाट्सएप पर 2 असाइनमेंट टाकल्या. वो नहीं किया. क्यों नहीं किया? कल क्लास को छुट्टी था. व्हाट यू डिड यस्टरडे? एक मेरे हाथ में मेरे घंटे का मेरे हिस्से का 1 घंटा एंड प्लस योर होमवर्क का घंटा. इतना करना ही चाहिए. ये क्या असाइनमेंट 1 बेसिक वाउचर, असाइनमेंट 5 बेसिक वाउचर, 2 और तुम लोग को डाल के रखा है मैंने. डाला है ना? और ये मैंने 10 भी ऑलरेडी दिया था. तो 9 और 10 तुम लोग को डे बिफोर यस्टरडे करना था एंड दिस 1 and 5 तुम लोग को यस्टरडे करना था. अदरवाइज अभी फिर मुझे डेली क्लास लेना पड़ेगा. मैं इधर ऑनलाइन जाऊंगी फिर 10-15 मिनट में बीच में आती जाऊंगी. मेरे सामने बैठ के करो असाइनमेंट. क्या बात? I'll do it today. हाँ, you have to do it today. This 1 number and 5 number
बेसिक वाउचर का। गीता तूने किया? वेरी गुड, गीता ने किया। देखो हाँ ठीक है ना, आंसर नहीं पता है। सी द थिंग इज, तुम लोग जो करोगे वो भले सही नहीं होगा, बट तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस तो हो रही है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू डू मिस्टेक यू लर्न मोर, okay, and that is self learning. Never, you will not forget it at all, because self learning is the best way of learning, only it is very time consuming. Okay, कोई हम लोग को सिखाता है ना तो हम लोग एक दो दिन में भूल जाते हो, लेकिन खुद सीखते हैं ना वो भी नेवर फॉरगेट। ओके चलो, तो अभी हम लोग ये एक्सरसाइज में है। अभी ऑल दिस 10 एंट्रीज यू हैव डन। Yes. अभी ये है ना, संतोष पूरे क्लास के बाहर ही गया, क्योंकि आज मैं इसका बैंक रिकंसिलिएशन सिखाने का था। मैं कैसे सिखाऊंगी? उसके बाद का नेक्स्ट एंट्री क्या है? चलो मैं उसके अभी बैंक रिकंसिलिएशन आई प्लान दैट आई विल टीच यू, बट आई एम नॉट टीचिंग दैट टुडे। हाँ संतोष जी, आज तुमको बैठ के कंप्लीट करना है। हाँ दोनों पे, बुक में भी और प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकली पूरा करोगे तो ही मैं आगे का प्रैक्टिकल कैसे करेगा। सी दिस इज, ये एक्सरसाइज है ना, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन है। Can you see first bank reconciliation? So I have to explain you what is bank reconciliation. I have to get it done. तो इसके पहले तुम्हारे वाउचर एंट्री होनी चाहिए कंपनी में। हाँ तो ये अभी ऐसे ही रखते हैं हम लोग और कुछ दूसरा करते हैं। चलो फिर अभी क्या एक्सरसाइज 10 क्या है? बैंक बुक है। हाँ फिर अभी ये करते हैं। हाँ निखिल वाला हो गया ना? वो बेसिक वाउचर एंट्री वो इजी है, वो तुम लोग कर लो। अभी मैं ये कॉस्ट सेंटर वाला कर देती हूँ। हाँ अभी कैन यू सी दिस एक्सरसाइज? आई एम शोइंग यू। हाँ नाउ सी, अभी जो तुम लोग ने एक्सरसाइज किया ना, पहले एक्सरसाइज से 1 2 3 4 उसमें देयर वाज अ ट्रायल बैलेंस एंड यू हैव क्रिएटेड अ कंपनी, और तभी तुम लोग ने ओपनिंग बैलेंस दिया था, राइट? देन जो कैश वाउचर्स का एंट्री किया एक्सरसाइज 8 9 10 जो भी था वाउचर्स वाला, उसमें नो ट्रायल बैलेंस वाज गिवन। उसमें ट्रांजैक्शंस दिए थे, गुड्स परचेज किया, सेल किया, इतना एक्सपेंसेस किया, इतना पेमेंट किया, तो उसमें सिर्फ वाउचर था। अभी का ये एक्सरसाइज देखो कैसा है, देयर इज अ ट्रायल बैलेंस गिवन। सो अभी ये ट्रायल बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल 9। तो अभी बुक खोलो तुम लोग, लिखो वहां पे आज का डेट लिखो। कंपनी का नाम डालो, बीना, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? अग्नि कंप्यूटर्स डाला। देन देयर इज अ, देन द पीरियड। अभी बोलो मुझे पीरियड का क्या रहेगा कंपनी का? क्या रहेगा पीरियड? हाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2009। हाँ ओके अभी आगे चलो। नाउ दिस इज हियर टू क्रिएट द लेजर। और अभी तुम लोग ओपनिंग बैलेंस दोगे या नहीं दोगे? दैट इज माय क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस दोगे या नहीं दोगे? यस I think देंगे. you have to give, huh? Because it is given. Whenever there is a trial balance means you have to give the opening balance. So you will create all these ledgers and you will create opening balance. Okay? चलो. So now यहाँ पे मुझे ग्रुप बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोलो ग्रुप क्या रहेगा? Bank account. हाँ हाँ गीता बोलो। आज का इंटरनेट अच्छा नहीं है आज।
बैंक अकाउंट। फर्नीचर का ग्रुप क्या रहेगा? जोसेफ, फिक्स एसेट्स, वेरी गुड, फिक्स एसेट्स। देन मोटर कार का ग्रुप क्या रहेगा? फिक्स एसेट्स। देन मशीनरी का ग्रुप क्या रहेगा? हाँ बोलो। फिक्स एसेट्स। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, ये सब बैलेंस एसेट था तो बैलेंस डेबिट बैलेंस है, बराबर है। यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं। आगे जाओ, अभी आगे क्या है देखो, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। हाँ, और जिसको बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, जिसका बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, जिसको बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। तो हाँ, तो ये क्या रहता है, अभी डिप्रिसिएशन क्या है तुम लोग को मालूम ही नहीं है। हाँ, डिप्रिसिएशन ये रहता है कि whenever you have a fixed asset, fixed assets are actually the expenses which are capitalized। हम लोग एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। यानी फर्नीचर के ऊपर पैसा खर्चा किया, लेकिन वो फर्नीचर तो एक्सपेंस है ना वो, लेकिन वो फर्नीचर हम थोड़ी एक साल में यूज करने वाले, वो तो हम लोग सालों साल यूज कर रहे हैं। यानी हमने एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किया, यानी वो एसेट हो गया। समझ रहे? तो एसेट के ऊपर हम खर्चे तो खर्चा ही है, लेकिन वो खर्चा सिर्फ एक साल के नहीं, एक साल के लिए नहीं होता। फिर वो खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। तो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस मीन्स फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट ना करंट एसेट्स। हाँ, तो अभी फर्नीचर हमने यूज किया था बहुत पहले, और उसके ऊपर वो एक साल यूज किया, दूसरे साल यूज किया, तीसरे साल यूज किया, फिर वो खराब होता जाएगा, खराब होता जाएगा, खराब होता जाएगा। खराब होगा कि नहीं होगा? यूज करेंगे तो खराब होगा। फिर 5 साल के बाद तुम लोग को फर्नीचर वापस नया खरीदी करना पड़ेगा। फिर तभी पैसे कहाँ से लाओगे? या मशीनरी का ऐसे होता है। तो देखो ऐसे हुआ, अभी तुम्हारा बिजनेस ऐसा है कि एक मशीनरी तुमने परचेज किया 5 लाख का, और बस वो तुम लोग का बिजनेस ऐसा ही है कि तुम्हारे मशीन पे तुम काम करके उसको दे दो, तुम लोगों को कुछ रॉ मटेरियल लगता ही नहीं है। लोग कुछ मटेरियल लेके आएंगे, तुम्हारी मशीन पे काम करो वापस दे दो, तुम्हारी मशीन पे काम करो वापस दे दो। फिर इसमें तुम्हारे कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, तो तुम लोग की जो मशीनरी यूज हो रही है उसका वेयर एंड टेयर होता जाएगा, वेयर एंड टेयर होता जाएगा। अगर उसका तुम खर्चा तो तुम लोग से दिखाया नहीं, क्योंकि तुम लोग ने फिक्स एसेट में डाला। तो अगर तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ खर्चा नहीं दिखा रहे हो, तो कैसे होगा? तुम लोग को जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, नहीं हुए हुए प्रॉफिट के ऊपर तुम लोग इनकम टैक्स भर बैठेगी। समझा? तो इसके लिए जो एसेट रहती है, एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी वो जो एसेट का साल भर का खर्चा साल भर में डालना पड़ता है। मैं रिपीट करती हूँ वापस, हम लोग जो एसेट परचेज करते हैं, जो एक्चुअली एक्सपेंसेस रहते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। फिर हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करते हैं, मीन्स वो फिक्स एसेट पे दिखाते हैं, लेकिन उसका कुछ खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना ही चाहिए। तो जो हमने फिक्स एसेट में दिखाया वो तो पूरी बड़ी अमाउंट थी, उसका कुछ परसेंटेज 5%, 10% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। क्या करके? डिप्रिसिएशन करके। डिप्रिसिएशन का मीनिंग है हिंदी में घट, घसारा। हाँ, जैसे ये मैं हिंदी में क्यों बता रही हूँ? फॉर गीता। हाँ, और पार्थ के लिए और संतोष के लिए हिंदी तो समझेगा ही नहीं। तो डिप्रिसिएशन को बस डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन यानी फिक्स असेट्स का एक साल भर का खर्चा। हाँ, तो इसके लिए उसको लेकिन ये क्या है, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ना, तो इसको तुम लोग को करंट लायबिलिटी पर डालना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी। हाँ?
अभी मैं ये डिप्रिसिएशन आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी हुआ ऐसे कि हम लोग ने क्या किया, फर्नीचर हम लोग ने लिया, उसका 5% उसका पूरी अमाउंट गई फिक्स एसेट में, और हम लोग ने 5% डाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हमने वो प्रॉफिट अपना कम दिखाया। लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली ना, लेकिन वो जो अमाउंट है वो हमको बाजू में निकाल के रखनी पड़ती है। तो ये साल की अमाउंट का और 4-5 साल की अमाउंट बाजू में निकाल के रखेंगे, तो फिर हम वो पैसे से नया नया मशीनरी नया फर्नीचर खरीद कर सकेंगे। इसके लिए वो लायबिलिटी करके दिखाना पड़ता है। हाँ, तो ये डिप्रिसिएशन दिखाया है और उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो उसको करंट लायबिलिटी दिखा देंगे। नहीं, उसको प्रोविजन दिखा दो, प्रोविजन। प्रोविजन। अभी तुम लोग तुम्हारे वो निकालो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट निकालो। बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन है कैपिटल के नीचे, कैपिटल के नीचे इतना नीचे किधर, ऊपर ही, कैपिटल के बस तुरंत बाद। नहीं है, प्रोविजन नहीं है ना, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन ना। हाँ। नहीं, इसको प्रोविजन नहीं बोलेंगे, इसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व बोलेंगे। हाँ, डिप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे, नॉट प्रोविजन, वी विल से इट इज रिजर्व, यानी हमने बाजू में पैसा निकाल के रखा। अभी दैट रिजर्व एंड डिप्रिसिएशन विल रिलेट टुगेदर। रिजर्व यानी बाजू में निकाल के रखने का, रिजर्व करने का पैसा। हाँ, तो ये सब मोटर कार है, वो सब क्या है, उसका ग्रुप रिजर्व। ओके, अभी 8% डिबेंचर्स, ठीक है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है, डेप्ट। हाँ, ये लोन है, तो इसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। सिक्योर्ड लोन, ये हमारी लायबिलिटी है। हाँ, अभी सिक्योर्ड क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स को प्रियोरिटी रहती है पहले, उसको सिक्योर्ड लोन ही बोलते हैं। डिबेंचर्स यानी मार्केट में इन्वेस्टर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स के लोगों, इन्वेस्टर्स से पैसा लेना, और वो इन्वेस्टर्स ने अपने अपने कंपनी में शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर द लीगल एंटिटीज ऑफ द कंपनी। ओके, डिबेंचर्स। अभी सुंदर एंड कंपनी को, उसको उसको देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है यानी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी। तो डिबेंचर्स तो कभी करंट लायबिलिटी नहीं रहती, डिबेंचर्स इज ऑलवेज सिक्योर्ड। अभी नेक्स्ट, सुंदर एंड कंपनी। सुंदर एंड कंपनी का बैलेंस देखो क्या है, डेबिट है। अब ये सुंदर एंड कंपनी यानी किसी का नाम है, तो हमारे लाइफ में अगर किसी का नाम रहता है, तो या तो वो हमारा रिलेटिव रहता है, या तो हमारा फ्रेंड रहता है। कंपनी के लाइफ में अगर किसी का नाम रहेगा, तो वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, काका मामा तो रहता ही नहीं है टैली में, अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में कौन रहता है, हाँ बराबर है, जोर से। हाँ, कैपिटल नहीं, नाम थोड़ी ना कैपिटल रहता है। हाँ, नाम भी कैपिटल रहता है। और क्या, ये डेबिट बैलेंस है, कैपिटल को डेबिट बैलेंस किधर रहता है, सन्ड्री के क्रेडिटर्स। हाँ, सन्ड्री डेबिटर्स, डेबिट बैलेंस है ना, सन्ड्री डेटर्स, हाँ, सन्ड्री डेटर्स। देन स्मार्ट कंप्यूटर्स, हाँ, अभी देखो ये बैलेंस क्रेडिट है, तो अभी ये कौन है, काका मामा है नहीं, तो कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। देन पेटी कैश, पेटी कैश को ग्रुप क्या देंगे तुम लोग,
बोलो, कैश इन हैंड। अभी एडवांस टू स्टाफ, अभी स्टाफ को एडवांस दिया, यानी स्टाफ को लोन दिया। बोलो, Indirect expense. नो, लोन दिया तो इट इज नॉट एक्सपेंसिव। हमने उनको पैसा दिया, लोन दिया था, वो हमको वापस भी Current देंगे ना। liability. करंट एसेट वो वापस देंगे ना हमको। जैसे हमारा पैसा Okay. बैंक में है, वैसा हमारा पैसा उनके पास है। बैंक में हमको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो हमको इंटरेस्ट नहीं देने वाले, लेकिन पैसा तो मिलेगा ना हमको बाद में। ओके, तो इट इज करंट बोलो एसेट्स, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये देखो अगेन क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है यानी किधर आएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स के लिए हमने प्रोविजन करके रखा, यानी हमने पैसा बाजू में निकाल के रखा, तो ये प्रोविजन, दिस इज प्रोविजन। तो लायबिलिटी में है ना, so this is provision. Provision, okay. Then TDS, tax deducted at source. अब ये TDS क्या है तुम लोग को किसी को मालूम नहीं है। देखो अभी अगर हम किसी के पास काम कर रहे हैं, whether we are working और whether we are doing business, और बिजनेस के तौर पे हम किसी का काम करके दे रहे हैं, यानी वो हमको पेमेंट देगा। तो इफ ही इज गिविंग पेमेंट टू अस, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट आई विल पे इनकम टैक्स। जो भी मुझे पेमेंट देगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने इनकम टैक्स भरा या नहीं भरा वो देखने की। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो मुझे जो भी पेमेंट देने वाला है उसमें से वो 2% टीडीएस कट करेगा। टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी तुम लोग को इनकम टैक्स मैथमेटिक्स में था 9th स्टैंडर्ड में, तो जो जो मुझे पैसा दे रहा है वो मुझे पूरा पैसा नहीं देगा। पूरा पैसा क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है, तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही शुड मेक श्योर दैट आई विल पे द इनकम टैक्स। So what is the guarantee that I will pay the income tax? So what he will do, he will cut income tax maybe 2% from my bill and as a TDS, and he will deposit that income tax on my name to the government. तो उसको बोलते हैं TDS, tax deducted at source. तो TDS क्या हुआ? Yes, it is also provision. And next is capital. Capital is capital. Okay? इतना क्लियर है? तो ये मैंने क्या किया, ग्रुपिंग ही किया था। पास का ऑडियो नहीं है, पास can you listen to me? Yes. Yes. I thought you were disconnected. No, no. अगर जर तो डिस्कनेक्ट झाला तर मला इन्फॉर्म करा, so that I will stop. Okay. Because if you are not there is no point in going further. कि वैसे भी संतोष पीछे है ना, हमको कहाँ से हम लोग इधर से, हाँ। अभी हमको आगे की एंट्रीज करनी है, तो पहले अभी तुम लोग क्या करोगे, you will create a company. After you create a company, you will create these ledgers. For these ledgers, you are creating a ledger, giving a group, and you are giving opening balance. Okay, and then after that, you have to do this voucher entry. You have to do this voucher entry. Okay. So अभी देखो यहाँ पे क्या है, interest on debentures to be debited at the end of every month, 8% per calendar month.
हाँ, हर महीने का हमको इंटरेस्ट देना है कितना 8%। तो अभी देना है, हमने दिया नहीं है, पेमेंट नहीं है। हाँ, तो हमको तो ये सिर्फ प्रोविजन करनी है। तो इसका वाउचर क्या आएगा? कैश नहीं है, बैंक नहीं है, फिर वाउचर क्या आता है? Journal. हाँ, जर्नल। यस संतोष, कैश नहीं है, बैंक नहीं है, तो वाउचर आएगा जर्नल। अभी एंट्री क्या आएगा? अभी तुमको एंट्री सोचना है। कौन से दो लेजर रहेंगे? इंटरेस्ट ऑन, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ। हमें इधर लिख ये रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ग्रुप क्या आएगा? बोलो। Indirect expense. यस, हमको देना है तो हमारा खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कौन सा ग्रुप है एक हमारा? हमको इंटरेस्ट देना है, लेकिन हमने दिया क्या? नहीं दिया, बराबर है। नहीं. तो और एक Current आएगा। liability. हाँ, वेरी गुड, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वेरी गुड पार्ट, ऑन डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इसका ग्रुप आएगा करंट लायबिलिटी। समझा? जब भी ऐसा होता है ना, तुमको ये देना है तो जिसका प्रोविजन करो, तो ऐसा होता है। एक इफेक्ट आएगा एक्सपेंसेस में, एक इफेक्ट आएगा लायबिलिटी। अभी अभी चलाओ। अभी कितना, तो अभी एक बार तुमको ग्रुप मालूम है, तुमको अभी लेजर मालूम है, तुमको ग्रुप मालूम है, तो अभी इसका आंसर गीता देगी। एक्सपेंसेस को क्या मिलेगा? डेबिट रहता है या क्रेडिट मिलता है? एक्सपेंसेस को बैलेंस क्या रहता है? हाँ, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंसेस क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसको डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, को डेबिट, एंड क्रेडिट किसको मिलेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अमाउंट, अभी अमाउंट कितना है? अभी ऊपर देखो अमाउंट कितना है? 8% डिबेंचर्स। हाँ, और ये लोग देख हमको कैसे शेंडी लगाएंगे। हाँ, इट इज 8%, 8% पर कैलेंडर मंथ, 8% per calendar month at the end of every month. देखो अप्रैल हो गया, मई हो गया, एक प्रोविजन सैलरी मई हो गया, बहुत डिफिकल्ट है एग्जीक्यूशन हमारे लिए है और मेन है।
अभी ये पूरी एंट्री हम लोग देखेंगे ना, तो पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें। इसमें अप्रैल का ट्रांजेक्शन है और मई का ट्रांजेक्शन है। देखा ना मैंने अभी जो दिखाया, तो हाँ, ये देखो अभी ये फर्स्ट, यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी कुछ नहीं बताया, यहाँ पे कुछ नहीं बताया है। आगे जाओ, आगे जाओ, यहाँ पे भी कुछ नहीं बताया है। यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल का कुछ एंट्रीज दिखाया है। देन आगे जाओ, देन मई का कुछ एंट्री देखो, यहाँ पे कुछ मई का एंट्री दिखाया है। पेमेंट रिसीव्ड ऑन 15/5 मई का एंट्री दिखाया है। फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, 30 अप्रैल का कुछ एंट्री दिखाया है। फिर फर्स्ट मई को कुछ परचेज दिखाया है। 31 मई को पेमेंट किया वो दिखाया है। यानी उनको मीन्स दे हैव टू मेंटेन फॉर अप्रैल एंड मई, बराबर है। तो फिर हमको यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे हमको 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो अभी डिबेंचर्स देखो कितना है यहाँ पे, आ गया 1,20,000. हाँ, 1,20,000 पे 1 महीने के लिए 8%। हाँ, देखो वहां पे दिया है ऐसे, 8 महीने के लिए 8% पर कैलेंडर मंथ। 1 लाख कितना था, 1,20,000, 1,20,000 के ऊपर 8%, 9,600, बराबर है ना। 1,20,000 के ऊपर 10% होता है 12,000, बराबर है। तो 8% होगा 2% लेस। 12,000 में से 2% लेस, बाद में 24, 12,000 माइनस 2,500, 400, 12,000 माइनस 2,400, तो इट इज 9,600, बराबर है। जैसे कि मैंने मेंटल किया ना, ऐसा होना ही चाहिए। नहीं तो क्या करो तुम लोग, 1% निकालने का, 10% आता है 1,20,000 के ऊपर 10%, लिखो ये इधर करो रफ पर, नहीं तो यहाँ से सुनोगे वहां से जाएगा। प्लेन पेपर ले लो, इधर ले लो, इधर रफ पेपर। 1,20,000 के ऊपर 10%, बताओ कितना आता है। हाँ, 10%, हाँ 12,000, हाँ 1% कितना आता है, और एक जीरो गया, 1,200, 120 कैसे, लिखो 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 सामने, 1,20,000, उसका 10% कितना हुआ, 12,000, 1% कितना हुआ, हाँ 1% कितना हुआ, हाँ बराबर है 12,000, ये हो गया 10%, 1% हुआ 1,200। अभी तुम लोग को करना है 8%, तो मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गया 8%। 12 8 जा 96, 96 के ऊपर 20, 9,600, बराबर है। दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर 10% 5% है तो फटाफट होता है, अगर ऐसा है तो 1% करने का मल्टीप्लाइड बाय दैट, इजीएस्ट वे। तो अमाउंट कितना हुआ, 9,600। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अभी ये है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये छोड़ो। सुंदर एंड कंपनी हैज एग्रीड टू पे पार्टी इंटरेस्ट, ये अभी तुम फिलहाल अभी छोड़ दो। हाँ, चलो आगे चलो। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, सेल्स में कंप्यूटर सेल्स करना है, एनुअल मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर ये करना है, ये करना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ो, चलो आगे। और ट्रांजैक्शन पेटी कैश में है, बैंक ट्रांजैक्शन एसबीआई में है, यानी ये दो लेजर तुम लोग को क्रिएट करना है। हाँ, अभी यहाँ से तुम लोग को करना है। कैश विड्रॉ 15,000, बोलो टाइप ऑफ वाउचर बोलो। Receipt. Sorry, contract. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट।
अभी कैश विड्रॉ यानी क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया या बैंक बढ़ गया, कैश बढ़ गया, तो कैश को क्या देंगे, क्यों, हाँ 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 डेबिट, फिर कम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमाउंट 15,000। ओके, ये क्लियर है, सिंपल है, ये तो कुछ था ही नहीं उसमें। आगे, वन कंप्यूटर सोल्ड टू सुजाता 26,000 और उसका चेक मिला, तो अगर चेक मिला, अभी इसमें तुम लोग को क्या क्या लगता है, क्या क्या है, एक तो सुजाता है, फिर सेल है और चेक है, इसका मतलब बैंक है, बराबर। अभी तीन लेके तो काम नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट तो एक ही है, तो एक अमाउंट है जो कहना है ओनली 2 लेजर्स, कभी इसमें से कोई तो एक लेजर तुमको छोड़ना पड़ेगा, तो विच वन यू विल लीव, कौन सा छोड़ोगे, सोल्ड, सेल, हाँ सेल नहीं छोड़ोगे, तुम लोग को सुजाता छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुमको पैसा मिल गया, तुरंत पैसा मिल गया, फिर किसने दिया, क्यों, क्या करना है तुमको, तुम्हारा काम खत्म, यहाँ पे तुमने कंप्यूटर दिया और तुमको पैसा मिल गया, फिर वो किसको भी दिया हो ना, तुम लोग को सुजाता का नाम रखने की जरूरत ही नहीं तुम्हारे अकाउंट में, बराबर है। whenever there is a cash or whenever there is a check, party name is immaterial, क्योंकि वहां पे सेल है, अगर सेल नहीं रहता था तो पार्टी नेम आता था, अगर चेक नहीं रहता था, कैश नहीं रहती थी तो भी पार्टी नेम आता था, समझा। तो अभी व्हाट इज दिस टाइप ऑफ वाउचर, सेल है यानी टाइप ऑफ वाउचर क्या है, रिसिप्ट, टाइप ऑफ वाउचर है रिसिप्ट। देन डेबिट किसको देंगे, गीता, डेबिट किसको देंगे, पहले कैश या बैंक चलाओ, बैंक, कैश है ही नहीं तो बैंक, बैंक बढ़ गया या कम हो गया, बैंक बढ़ गया या कम हो गया, कम कैसे हो गया, हमने सेल किया, हमने उसको कंप्यूटर दिया और उसके ऊपर हमने उसको चेक भी दिया, हाँ क्या, बैंक कम क्यों हुआ, बैंक कम हो गया, वही तो गलत बोल रहे थे, तूने कंप्यूटर सेल किया ना, हाँ तो डेबिट बोला, लेकिन वो थोड़ी कम बोल रही है ना, बैंक, तूने सेल किया, तूने कंप्यूटर दिया, तो तुमको चेक मिलेगा ना, तो चेक मिलेगा यानी बैंक तेरा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो अभी बैंक को क्या देगी, हाँ डेबिट, क्यों बोलो, हाँ हाँ बैंक बढ़ गया, इसके लिए बैंक को देंगे डेबिट, हाँ फिर इसके लिए यहाँ पे आएगा स्टेट बैंक को डेबिट, क्रेडिट किसको आएगा, सेल्स को, तो दूसरा है ही नहीं, अमाउंट कितना है 26,000। नेक्स्ट, अगेन सोल्ड है, अगेन चेक है, तो सेम, बराबर है, सेम है ना, देखो सेल है, विनीता है, तो विनीता को हमको क्या करना है, अमाउंट दिया है, चेक दिया है, तो सेम है, तो सेम, चलो आगे, आगे देखो क्या है, हाँ अभी देखो ये आगे डिफरेंट है, अभी आगे का एंट्री देखो, 20 कंप्यूटर सोल्ड, सेल किया, देखो, लेकिन यहाँ पे ये जो सेम है ना, ये लेकिन देखो 3 कंप्यूटर्स है और 22,000 ईच है, ये लोग बहुत हमको शेंडी लगाने को बैठे हैं, तो आग में तेल डाल के तुम लोग को देखना है, एक को 22,000, तो 3 को हाउ मच, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा तुम लोग को अमाउंट, समझा। चलो नेक्स्ट, तो लेकिन वो सेम रिसीट है, तो डेबिट क्रेडिट सेम है, अमाउंट आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी नेक्स्ट, 20 कंप्यूटर्स
सोल्ड ऑन क्रेडिट, अभी सोल्ड ऑन क्रेडिट ये पहली बार तुम लोग ने सुना है। तो यू आर सेलिंग ऑन ए क्रेडिट मीन्स नाइदर यू आर गेटिंग कैश नॉर यू आर गेटिंग बैंक, ना तुम लोग को कैश मिल रहा है ना तुम लोग को बैंक मिल रहा है। So what is the type of voucher? So the type of voucher is, बोलो, very good संतोष, जर्नल। तो देख तू रोज करेगा, हमारे साथ करेगा तो किधर पहुंचेगा? तुम खुद सोचो कि तुमको आगे पहुंचना है या उधर ही रुकना है। जर्नल, हाँ, तो जर्नल अभी यहाँ पे कौन से दो लेजर है? अभी दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसने कैश नहीं दिया, तो हमको ध्यान रखना है कि किसने हमको कैश नहीं दिया, हमको कैश कब मिलेगा, किसके पास से मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो द नेम इज इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट लेजर इज सोल्ड। नेक्स्ट लेजर इज सोल्ड, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको पेंडा सॉफ्ट से पैसा आना है। क्यों आना है? क्योंकि हमने उसको सेल किया है। अभी बोलो, चलो अभी डेबिट और क्रेडिट किसको? अभी संतोष, अभी संतोष, हाँ, क्यों? फ्रेंड्स ऑफ कैपिटल कैसे हो सकता है? नाम है, नहीं नहीं, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम देखो सबसे ऊपर क्या है? अग्नि कंप्यूटर्स है। तो पेंटास ऑफ क्या है? यहाँ पे कैपिटल को एक नाम रहता है, कैपिटल का ऑप्शन गया, फिर काका मामा तो रहता ही नहीं है, तो कौन रहता है टैली में? हाँ, पार्थ बोलो चलो। सेल्स डेबिट में रहेगा। सेल्स का डेबिट कसं? सेल्स अकाउंट हैज ऑलवेज गॉट क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ला, सेल्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस। फिर डेबिट किसको मिलेगा? एक ही बचा है, पेंटासॉफ्ट। हाँ, फिर अभी पेंटासॉफ्ट कौन है? पेंटासॉफ्ट कौन है? पेंटासॉफ्ट तुमको पैसे देंगे, सन्डी डेब्टर्स, ओके। हाँ, सन्डी पैसे तुमको देंगे, तो वो तुम्हारे सन्डी डेटर्स है। अमाउंट कितना है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 20 के ऊपर 20 का, 20,000 के ऊपर 20 का एक जीरो लगा दो, तो वो 2 लाख हो गया। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 लाख। मेरा मेंटल मैथ बहुत बेकार है, लेकिन लॉजिक यूज करेंगे तो फटाफट होता है। मेरा मेंटल मैथ बहुत बेकार है, इसके लिए मैं लोगों को मेंटल मैथ सिखाती हूँ। मेरा तो सुधर नहीं सकता, तो तुम तो सुधरो। एक्चुअली आई नो हाउ टू डू इट। चलो नेक्स्ट, एनुअल मेंटेनेंस। हाँ चलो, अभी अभी देखो ये क्या है? देसाई, अभी ये संतोष बताएगा। देसाई एजुकेटर्स 28,000 and payment received on this. So what is the type of vouchers? Very good, receipt. receipt कौन से दो लेजर्स हैं? 28,000, सॉरी, एक क्या है? हाँ, चेक है, बैंक है एंड देसाई है, यस। तो रिसिप्ट, हाँ, कैश किधर है? कैश है ही नहीं, बैंक। तो वो जो भी है स्टेट बैंक था, स्टेट बैंक को डेबिट एंड क्रेडिट को क्या आएगा? एक्चुअली डेबिट में देसाई नहीं आएगा, यहाँ पे डेबिट में एनुअल मेंटेनेंस आएगा। हाँ, क्योंकि अगर ऑन क्रेडिट है ना, ये देखो ऑन क्रेडिट में दिखा रही, अगर ऑन क्रेडिट है ना तो ही पार्टी का नाम आएगा, यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं है, तो इसके लिए तुमको देसाई नहीं डालना है। अगर तुम लोग देसाई डालोगे ना, फिर तुमको दो दो एंट्री करना पड़ेगा। पहले तुमको जेवी करना पड़ेगा, देसाई को एनुअल मेंटेनेंस प्रोवाइड किया, और उसको उसके बाद तुमको रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। उससे अच्छा तो, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, तो 4 को बिल गया और 28 को तुमको पैसा मिल गया।
तो रिसिप्ट का एंट्री सीधा आएगा। नहीं तो फिर तुम लोग को 4 को ये देखो क्या क्या करना पड़ेगा। 4 को ये भी करना पड़ेगा। अभी मैं जेबी ऐसे लिखूंगा, जर्नल वाउचर। फिर वो जेबी तुमने क्या किया, एनुअल मेंटेनेंस अकाउंट डेबिटेड नहीं, देसाई अकाउंट डेबिटेड, देसाई एजुकेशनल अकाउंट डेबिटेड टू एनुअल मेंटेनेंस। लिखो मत ये एनुअल मेंटेनेंस, ये जेबी हो गया। अमाउंट क्या आएगा 28,000। और फिर 28/4 को 28/4 को रिसिप्ट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दिस। do this kind of two entries। या अभी मेरे सामने सामने है तो मैं क्या करूंगी, डबल कम क्यों करने का, मैंने ये देसाई हटाया, ये देसाई हटाया और ये देसाई हटाया, तो एंट्री सीधी कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एनुअल मेंटेनेंस। लेकिन एनुअल मेंटेनेंस को ग्रुप क्या दोगे तुम लोग, डायरेक्ट इनकम। कैसे है वो तुम्हारा, ठीक है, क्लियर, इतना समझा तुम लोग को। तो ये मैं निकाल रही हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं निकाल रही हूँ, स्टेट बैंक टू एनुअल मेंटेनेंस। बात क्लियर? यस यस। अगर एक्चुअल मेरा अकाउंटिंग रहता था ना तो मैं एंट्री नहीं, एंट्री अभी जैसे मैंने दिखा है ना जेबी एंड रिसिप्ट वैसे करती थी, क्योंकि मैंने उसको 4 को बिल दिया, उसने तुरंत मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो मैं उसको जेबी में डाल दूंगी और जब भी वो आएगा तभी मैं रिसिप्ट डालूंगी। लेकिन ये अभी मैं ऑनलाइन नहीं कर रही हूँ ना, अभी तो मेरा ऑफलाइन अकाउंट है, होने के बाद मैं 15 दिन के बाद कर रही हूँ, दोनों ट्रांजेक्शन एट ए टाइम दिया यानी ऑफलाइन है, तो मैं डबल काम नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग रखना है, तो मैं शॉर्टकट निकालूंगी। फिर इतना आगे। अभी ये भी सेम है, गुरुनाथ को अभी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, एक हो गया देसाई को, एक हो गया गुरुनाथ को, सेम एंट्री, एक हो गया कैंडिडेट को, सेम एंट्री है। अभी फिर आगे देखो क्या है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोवाइडेड। अभी जैसे वो एनुअल मेंटेनेंस था वैसे अभी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है। हाँ वो भी सेम है, पेमेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है यानी क्या है वो, यस रिसीव्ड है, इसका मतलब रिसीट है। फिर यहाँ पे देखो रिसीव्ड, अभी वो वर्डिंग देखो कैसे यूज करते हैं, पेमेंट रिसीव्ड। जो अच्छी तरह से नहीं देखेगा ना वो पेमेंट में भी एंट्री कर सकता है। हाँ रिसीव्ड है, हाँ तो वो रिसीट रिसीट की एंट्री है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे, अभी ये देखो यहाँ पे इट इज अनपेड, दिख रहा है अनपेड, यानी ये हमको मिला नहीं है, इसका मतलब दिस इज व्हाट वी हैव डन इट ऑन अ क्रेडिट। तो अगर ये क्रेडिट पे है तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर, व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर, हाँ क्रेडिट वाउचर है ही नहीं, हाँ नहीं क्रेडिट पे है ना, मतलब मिला किधर, रिसिप्ट अगर तेरे को पैसा मिलेगा, जर्नल, वेरी गुड, जर्नल है। हाँ अभी कौन से 2 लेजर्स है, गुरुनाथ एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस,
बराबर है। अभी किसको डेबिट देंगे? किसको डेबिट देंगे? गुरुनाथ को डेबिट। क्यों? गुरुनाथ कौन है? काका मामा। वेरी गुड, संडे डेटर्स। एंड क्रेडिट किसको देंगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्रेडिट देंगे। हाँ, सॉफ्टवेयर का ग्रुप क्या आएगा? क्रेडिट है तो ग्रुप क्या आएगा? हाँ, इनकम। कि वहां से हमको पैसा आ रहा है तो वो हमारा इनकम है। क्लियर? अभी आगे देखो क्या है। मेक अ प्रोविजन फॉर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मे। मेक अ प्रोविजन फॉर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मे मेड ऑन 28/4। अरे ये सब मिस्टेक है अभी। मेक अ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल होना चाहिए। ऑन 28/4। हाँ? अभी हमको ये लेजर खोलने हैं। क्रिएट पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन टैक्स, ईएसआई, सैलरी पेबल। ये लेजर तुम लोग को खोलने हैं। पीएफ का लेजर क्या आएगा? ग्रुप क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। सबका ग्रुप करंट लायबिलिटी आएगा। सबका ग्रुप आएगा करंट लायबिलिटी। सब हमको देना है करंट लायबिलिटी। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। फिर पी टैक्स क्या होता है? प्रोफेशन टैक्स। जैसे इनकम टैक्स रहता है वैसे प्रोविडेंट टैक्स रहता है। ईएसआई क्या रहता है? एम्प्लॉयज इंश्योरेंस। हाँ, एंड सैलरी पेबल। चलो आगे। अभी इतना हमको पेमेंट देना है तो अभी ये एंट्री कैसे आएगा? यहाँ पे लिखने को जगह ही नहीं। यहाँ पे एंटर कर दो। तुम्ही एक्सरसाइज 11 देते ना त्यांना हिजाम बंपर जाणार है ना. आता मला वाटतं ते घ्यायला पाहिजे मोठे वाउचर्स. अभी हमको दिस वी हैव टू डू. हाँ, ये वाउचर एंट्री करनी है तो हमको प्रोविजन बनाना है. रिसिप्ट पेमेंट कुछ है क्या? नहीं है. प्रोविजन करना है. यहाँ पे उन्होंने बोला है ना, देखो मेक अ प्रोविजन फॉर सैलरी बोला है तो प्रोविजन बोला है यानी कौन सा वाउचर पास करने का? प्रोविजन बोलेंगे तो डेबिट. हाँ, अभी डेबिट किसको देंगे? सैलरी को डेबिट. सैलरी एक्सपेंसेस है. अभी ये एक कंबाइंड एंट्री होने वाली है. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. और क्या आएगा? प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड और क्या आएगा? ईएसआई इंश्योरेंस.
और आएगा प्रोफेशन टैक्स, अमाउंट उन्होंने सब दिया है, अमाउंट उन्होंने दिया है 6,717 का सैलरी है। देन प्रोविडेंट फंड कितना है 1,008। देन ESI कितना है 100, ESI है 100। देन प्रोफेशन टैक्स है 175। फिर उसका सैलरी कितना है 8,000। हमने एक एंट्री की थी जिसमें 3 लेजर इफेक्ट हो रहे थे, हाँ, और ये अभी एंट्री ऐसा है जिसमें एट ए टाइम 5 लेजर्स वी आर गिविंग इफेक्ट। तो ये कंबाइन एंट्री बोलते हैं इसको। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये सैलरी रहेगा, उसका नाम क्या है श्रीराम सैलरी। तो लिखने की जरूरत है, नरेशन में लिखना पड़ेगा। किया, फिर ये एक श्रीराम का ऐसे किया, वैसे ही हमको सुरेश का करना पड़ेगा, वैसे ही हमको धर्मेंद्र का करना पड़ेगा। और फिर नीचे सेम ट्रेनी है, उनका भी सेम ऐसे एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद चलो वो थोड़ा डिफिकल्ट काम था, उसके बाद ये अभी तुम्हारे लिए इजी काम है। बोलो चलो, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च पेमेंट करना है, चलो बोलो। दे पेड द फॉलोइंग बिल्स, पेड यानी व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर Payment. पेमेंट, हाँ तो बोलो पेमेंट। बोलो इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 5,000, हाँ बाय Debit. चेक। तो चेक यानी बैंक हमारा कम हो गया या बढ़ गया, कम हो गया। तो बैंक को क्या देंगे Credit. स्टेट बैंक है ना, स्टेट बैंक। फिर डेबिट किसको देंगे, अभी देखो Electricity. दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 5,000 है, अभी जाओ ऊपर फॉर द मंथ ऑफ मार्च है, हाँ अभी कुछ नहीं दिया है, तो डालो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। चार्जेस अमाउंट 5,000। चलो नेक्स्ट, ऑफिस रेंट क्या है, बोलो गीता। पेमेंट डेबिट बोलो, डेबिट बोलो, ऑफिस रेंट। क्रेडिट बोलो, कैश किधर है, चेक बोला है ना 6,000 का, हाँ फिर स्टेट बैंक अमाउंट कितना है 6,000। नेक्स्ट 300 का क्या है बोलो संतोष, टाइप बोलो, पेमेंट वाउचर बोलो, पेमेंट सैलरी का डेबिट और हाँ कैश आएगा, कैश 300।
आगे टेलीफोन बिल बोलो गीता पेमेंट आगे डेबिट डेबिट हाँ टेलीफोन बिल स्टेटमेंट अभी वापस पेमेंट पेमेंट यानी पेमेंट है बैंक पेमेंट है कुछ भी नहीं लिखना है पेमेंट है बैंक पेमेंट है कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है ये तुम लोग को प्रैक्टिकली नहीं करना है अभी करने के लिए इसमें बहुत सारा झंझट यानी वो आधा अधूरा हो जाएगा तो जो तुम लोग को आने वाला था वो मैंने ऐसे ही तुम लोग को एक्सप्लेन किया हाँ तो लेट्स फॉरगेट अभी आज तुम लोग को मैंने जो 3 तुम लोग के पास दिया है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 10 एंड बेसिक वाउचर 1 एंड 5 कल 8 बजे तक कंप्लीट होना चाहिए सो दैट डे आफ्टर आई बी एबल टू टीच यू न्यू ओके पार्थ Yes. and then what I am going to show you what we are going to do is I will just show you दिखने को बहुत बड़ा है but that is simple and तो मैं यहाँ पे दिखा के रखती हूँ तुम लोग को असाइनमेंट नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 ये है कंपनी उसका ये ट्रायल बैलेंस जो है और फिर इसके इतने वाउचर्स हैं 16, 19, 20, 27, 28 हाँ पार्थ Okay. like this so many options are there 1 2 3 4 5 इतना हमको करना है अल्टरनेट डे हम लोग करेंगे इसके बाद पार्थ यू हैव टू डू योर रजिस्ट्रेशन Okay. हाँ तो मीन्स we will do this तो मीन्स now all your concepts are clear now जो 12th standard के बच्चा जानता है ना उतना तू इतना काम करेगा तो you will come up to that level फिर तेरा हम टैली का रजिस्ट्रेशन करेंगे और गीता का और संतोष का हम लोग तो टैली का रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले इनके लिए ठीक है वो इजी जो है तेरे साथ करते रहेंगे बस डिफिकल्ट वो लोग 12th के वेकेशन में करेंगे Okay. ठीक है तो दिस एक्सरसाइज मीन्स डे आफ्टर आई विल टीच यू बैंक रिकंसिलेशन उसके बाद हमको ये एक्सरसाइज करनी है क्योंकि ये एक्सरसाइज में देखो तुम यहाँ पे देखोगे तो बैंक रिकंसिलेशन है चेक क्रेडिट डेट है देखो यहाँ पे डेट अलग है वो सेम डेट है ये सेम डेट है बैंक रिकंसिलेशन कब बनाना पड़ता है जब अलग अलग डिफरेंट डेट रहते हैं ये देखो 15 तारीख को पेमेंट किया और वो 18 को पास हो गया है ना इसमें वो है तो दैट्स व्हाई आई हैव टू टीच यू एंड देन अगेन कॉस्ट सेंटर भी है इसमें तो मुझे तुम लोगों को कॉस्ट सेंटर भी सिखाना है बट आई कैन टीच यू ऑल टुगेदर सो आई विल टीच यू बैंक रिकंसिलेशन फर्स्ट ठीक है तो इनफ फॉर टुडे बाय बाय सी यू